guys from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3, subject SS. We are starting with chapter number 4, that is the air around us, and this is my session number 1 for this chapter. So kids, the chapter's name, as I said, the air around us. Can you just imagine? If we had no air, what would have happened? Or you can say, what is air? What is air? You can see air? I cannot see it. Can you smell the air? No, I cannot smell the air. Can you touch the air? No, not able to touch the air. But yes, you can feel the air. You can feel the air. How do you feel it? How do you feel the air? Yes. First of all, air is all around us. In all the empty places around you, there is air. When the air blows gently, when it shows some movement, जब एयर में कोई मूवमेंट होती है तब आप उसे फील करते हो. If you put off the fan, you will be feeling hot. But as you switch it on, फैन को जैसे ही ऑन करते हो, what happens? जो एयर है उस सराउंडिंग एरिया की एयर वो भी फैन की ब्लेड्स के साथ मूव करना स्टार्ट कर देती है. It starts rotating. And when it moves, you will feel the air. तब आप उसे फील करते हो तो आपकी जो गर्मी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि अब आप उस ब्लोइंग एयर को फील कर सकते हो. ये एयर अगर धीरे धीरे ब्लो करती है देन इट इज कॉल्ड ब्रीज. जेंटली मूविंग एयर जो होती है ना उसे हम ब्रीज कहते हैं. जब आप कहीं फार्म हाउस पे जाते हो तो आप एयर जो फील करते हो इट इज कॉल्ड ब्रीज. ब्रीज, व्हाट इज इट कॉल्ड? ब्रीज. जेंटली मूविंग एयर मतलब धीरे धीरे जो एयर ब्लो होती है उसे हम ब्रीज कहते हैं. इफ इट इज एक्सट्रीमली वायलेंट देन इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. व्हाट इज इट कॉल्ड? स्टॉर्म. बहुत स्ट्रॉन्ग है विंड जिससे किसी को डैमेज भी हो सकता है. कोई पेड़ गिर गया या किसी के रूफ को डैमेज कर रही है, रूफ पे से कोई दिस मेटल के जो शेड्स लगे वो अगर निकल जाते हैं, दैट टाइम इट विल कॉज डैमेज. तो उन जो स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हमें डैमेज कॉज करती है उन्हें हम कहेंगे स्टॉर्म. वी यूज एयर टू ब्रीथ. अब ब्रीथ करते हो एयर है इसलिए. अगर एयर नहीं है तो ब्रीथ कर पाएंगे? नो. करेक्ट? तो ये एयर होनी जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एयर अराउंड अस. हमारे आजू बाजू में जो एयर है उसके बारे में हम लर्न करेंगे इस चैप्टर में. सो नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस्ड व्हाट इज एयर टू यू इन जनरल other than the textbook. Okay? But to start, what is given in your textbook? First, let us look into the vocabulary words. Which will you go through in this chapter? So, before that, vocabulary words are important because जब हम ये lesson को इस textbook के through read करेंगे, तब इन words के meaning आपको clear होने चाहिए. Otherwise, you will not be able to understand the whole chapter. So, let's learn the vocabulary words of this chapter with the help of PPT. Chapter number 4, the air around us. First one, turbines. Turbines means modern windmill used to generate electricity. Modern windmill used to generate electricity. See in the picture, you can see the turbines. They are windmills. Windmills means pavan chakki.
दे आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं, जनरेट करना, करेक्ट? नाउ वेयर डू वी यूज दिस इलेक्ट्रिसिटी? कैन यू आंसर दैट? यस, we use electricity in different electrical appliances, like for example, if you want to switch on the fan works only with the help of electricity. At night when it is dark, you switch on your tube lights or bulbs. These also work with the help of electricity. If you want to switch on AC, it's extremely hot and you want AC, then it works with the help of electricity. In the kitchen, your mother uses mixer grinder, hand blenders, microwave ovens. All these things are the appliances which use electricity to run. So they are called electrical appliances. You use your mobile phones, your computers, your laptops, your tablets, but you need to charge them. Now, how do you charge them? They get charged when you connect them to the electrical sockets. Correct? आपको चार्ज करना पड़ेगा तो ही वो चल पाएंगे। सो इलेक्ट्रिक सॉकेट में डाल के उन्हें चार्ज करना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैन यू यूज देम? नो, यू वोंट बी एबल टू यूज देम। सो दीज टर्बाइन्स, दे आर द विंड मिल्स और मॉडर्न विंड मिल्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये विंड मिल जो है, टर्बाइन जो है, वो इस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, बनाती है। They are placed in the areas where it is open land and where the wind blows. Open areas होते हैं जहाँ बहुत wind blow होती है, वहाँ इन्हें इंस्टॉल किया जाता है। Okay? They are called turbines. Next one, smoke. Smoke means a visible suspension of carbon or other particles in air, typically one emitted from burning substance. Once again, a visible suspension of carbon or other particles in air, typically one emitted from a burning substance. In the picture you can see the smoke. How is it seen? Yes, it is seen because of the color it is emitted from that burning thing. किसी चीज को जलाया गया है और उस चीज की जलने की वजह से जो एयर के अंदर कार्बन या कुछ ऐसे पार्टिकल्स एयर के अंदर मिक्सअप होते हैं ना, उसकी वजह से स्मोक होता है। कार्बन इज अ ब्लैक कलर सब्सटेंस। व्हेन यू बर्न समथिंग यू कैन सी ब्लैक कलर सब्सटेंस, दैट इज कार्बन। सो जब किसी भी चीज को जलाया जाता है, स्पेशली जलाने की वजह से धुआं निकलता है ना, उसको स्मोक कहते हैं। ड्यूरिंग दिवाली, करेक्ट, ड्यूरिंग दिवाली you burn firecrackers, you burst firecrackers. So at that time you can see the smoke coming out from them, right? Yes. So that is smoke. A visible suspension. Suspension मतलब निकलना, किसी चीज में से बाहर निकलता है ना, उसे suspension कहते हैं। A visible suspension of carbon. क्या बाहर निकलता है? कार्बन। So visible suspension of carbon और अदर पार्टिकल्स। कार्बन के अलावा बाकी पार्टिकल्स भी उसमें से बाहर निकलते हैं और निकल कर कहाँ जाते हैं? इन द एयर। टिपिकली वन एमिटेड फ्रॉम बर्निंग सब्सटेंस। और ज़्यादातर ये कैसे होता है? किसी सब्सटेंस को बर्न करने से, जलाने से। ओके,
So that is smoke. Smoke. Next is pollution. Pollution means introduction of contaminants into the natural environment that causes adverse change. Let me read it once again. Introduction of contaminants into the natural environment that causes adverse change. Okay, contaminant into natural environment मतलब फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखो तो ऑन द लैंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ अनवांटेड गार्बेजेस एंड वेस्ट. Second picture you can see the smoke coming out and it is released in the air. Third picture you can see dirty water which is released in the other water bodies such as river, lake or something like that. So यहाँ क्या हुआ है, ये सारी जो गंदी चीज़ें होती हैं ना उन्हें contaminated things कहते हैं. So these contaminants into the natural environment, that is these contaminants are introduced to natural environment. आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो कि कचरा पूरा ज़मीन के ऊपर गिरा पड़ा है, तो नेचुरली क्या ज़मीन इतनी गंदी होती है? नो, द लैंड इज सो ब्यूटीफुल एंड क्लीन. ग्रीनरीज होते हैं, ग्रासेस होते हैं, क्या कचरा होता है? नहीं, नहीं होता है. बट इस कचरे को हमने यहाँ पर डंप किया है, तो इस वजह से इसका एडवर्स चेंज आता है. वो अब नेचुरल एनवायरनमेंट जो था उसमें चेंज आ गया. जहाँ पूरे ग्रीन ग्रासेस हुआ करते थे वहाँ अब सारा कचरा पड़ा है. सिमिलरली सेकेंड पिक्चर यू कैन सी, जो स्काई है वो तो एकदम ब्लू, क्लीन और एकदम प्योर एयर से भरा हुआ होता है. बट यहाँ पर इन चिमनीज की वजह से, ये जो लंबे लंबे पाइप है ना, इनको चिमनीज कहा जाता है. सो फैक्ट्रीज में जो अलग अलग मशीनरीज चलती हैं उनमें से जो धुआं निकलता है ना, वो चिमनीज की मदद से रिलीज किया जाता है एयर में, अप इन द स्काई. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो क्लीन एयर थी, क्लीन स्काई दिख रहा था, उसको हमने कंटेमिनेट कर दिया, खराब कर दिया, ये इन खराब चीज़ों को वहाँ पर रिलीज करने की वजह से. तो यहाँ क्या हुआ, आपकी एयर का पोल्यूशन हो रहा है, खराब हो रही है. थर्ड पिक्चर यू कैन सी कि इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज में से जो गंदा पानी निकलता है वो किसी रिवर में या ओशियन में उनको रिलीज किया गया. करेक्ट, इन पानी को रिवर या ओशियन में छोड़ दिया गया. नाउ इन द रिवर्स एंड ओशियंस द वाटर इज सो क्लीन, बट व्हाट हैपन्स इफ यू रिलीज सच डर्टी वाटर इनटू देम? दे ऑल्सो गेट कंटेमिनेटेड, वो भी खराब हो जाते हैं. खराब होने की वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है. सो फर्स्ट पिक्चर में लैंड खराब हो रही है तो लैंड पोल्यूशन है. सेकेंड पिक्चर में एयर पोल्यूशन है. थर्ड पिक्चर वाटर पोल्यूशन है. सो दैट इज पोल्यूशन, खराब करना. दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स into the natural environment that causes adverse change. Clear? Next one is garbage. Garbage means rubbish or waste. कोई भी कचरा होता है ना, rubbish जिसे कहते हैं, या waste, उसको garbage भी कहा जाता है. See, you can see the dustbin full of waste or full of garbage. The garbage can be from the kitchen or from other parts. हॉस्पिटल्स में से गार्बेज निकलता है, किचन, आपके रेगुलर वर्क का जो किचन है होम में, तो वहाँ से भी गार्बेज निकलता है. करेक्ट, वेजिटेबल के पील, फ्रूट के पील्स हैं, वो आप फेंक देते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है, दे आर गार्बेज.
फिर आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क कर रहे हो तो पेपर कटिंग करने के बाद जो वेस्ट पेपर है दैट इज गार्बेज। आप पेंसिल्स को शार्पन करते हो तो उसमें से जो उसका वो वुड का ऊपर का पील निकलता है दैट इज गार्बेज, करेक्ट? इट इज अ वेस्ट और अ रबिश। So in the picture you can see the garbages, used plastic bottles, used polythene bags। फिर आप दवाई खाते हो मेडिसिन्स, उसमें से जो रैपर निकलते हैं that is also waste, it is a garbage, correct? So all these are garbages. Next, bursting. Bursting means a sudden outbreak, an explosion। अगर कोई चीज फूट जाती है ना तो उसे बर्स्ट होना कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्स्ट। आप दिवाली के वक्त फायर क्रैकर्स को बर्स्ट करते हो, राइट? उस पर पहले थोड़ी सी आग लगा देते हो और फिर वो बर्स्ट हो जाता है। सो दैट इज बर्स्टिंग, मीन्स सडन आउटब्रेक, एन एक्सप्लोजन। क्लियर? Next, absorb. Absorb means take in. Take in. See in the picture. ये पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक ऐसा रोड बनाया गया है जिसमें आप कितना भी पानी डालो वो पानी आप देख रहे हो भर नहीं रहा है, वो रोड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। सोक, इट सोक्स द वाटर। आपने कभी ये ट्राई किया है कि अगर आपने कहीं पानी गिरा दिया फिर उसके ऊपर अगर कॉटन का कोई कपड़ा रख दो और अच्छे से उसे पोछा मार दो तो क्या होगा? दैट क्लॉथ विल एब्जॉर्ब द वाटर। वो कॉटन का क्लॉथ है ना, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, करेक्ट? और फिर वो जगह फिर से ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। Here in the picture also they are releasing the water on the road, but water is not getting blocked there। वहाँ पर water block नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रोड है ना वो water को absorb कर रहा है। So now I hope you have understood the meaning of word absorb. Absorb means take in. Absorb means take in. So here we come to the end of the vocabulary. Now let's move on to the general video lecture. Okay, I hope you are all thorough with the words given in the vocabulary. Now let's start the chapter in your textbook. Chapter 4, that is the air around us. First paragraph is regarding air. So what is air? Air is present all around us. Even if you see the empty glass, you cannot say that it is completely empty. There is air inside it. When you are blowing a balloon, the size of the balloon expands. Why is that so? Because there is air inside the balloon. So air is everywhere. We cannot see, touch or taste the air. Can you see the air? Can you touch the air? No, you cannot see, touch or you cannot even taste it. उसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। We can only feel it. सिर्फ फील कर सकते हो, करेक्ट? अगर डेजर्ट एरिया में जाओगे तो हॉट एयर फील करोगे, गरम गरम हवा आ रही है। कोल्ड एरिया में जाओगे, कश्मीर है, शिमला है, आबू है, माउंट आबू, वहां पर भी विंटर में जाओगे तो जो एयर ब्लो होती है वो कोल्ड एयर होती है, तो आप फील कर सकते हो, बट यू कैन नॉट सी, टच और टेस्ट इट। वी कैन फील द एयर व्हेन द काइट फ्लाइज। जब काइट फ्लाई करती है तो आपको दिखता है कि एयर इस तरफ ब्लो हो रही है, इस तरफ ब्लो हो रही है। यू माइट हैव सीन, राइट? यस। व्हेन वी रन टू फास्ट, अगर बहुत जोर से अगर फास्ट फास्ट रन करेंगे तब क्या होगा? आपको एयर फील कर सकते हो। और when the leaves of the tree rustle, ट्री के लीव्स जब आवाज करने लगते एकदम विंड के साथ, तब आप फील
फील कर सकते हो, आपको पता चलता है कि अच्छा ये एयर ब्लो हो रही है, विंड ब्लो हो रही है, करेक्ट? यस। सो एयर, व्हाट इज एयर नाउ? एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस एंड गैसियस सब्सटेंसेस। बहुत सारे अलग अलग टाइप के गैसेस और गैसियस सब्सटेंसेस, इन गैसेस जैसे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है एयर। कौन से गैसेस? सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे गैस है। वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर मतलब के मॉइस्चर कंटेंट जो एयर में होता है वो वाटर वेपर होता है। When you boil the water, वाटर को जैसे बॉईल करते हो तो उसके ऊपर से आपने व्हाइट कलर का धुआं निकलता हुआ देखा है। नॉट ओनली वाटर, एनी लिक्विड सब्सटेंस और एनी सब्सटेंस व्हेन यू हीट, उससे जब हीट करते हो किसी भी सब्सटेंस को, तो स्पेशली लिक्विड सब्सटेंस के ऊपर से जो धुआं निकलता है ना, तो उस धुएं के साथ साथ थोड़े थोड़े वाटर कंटेंट भी होते हैं। ये कैसे पता चलता है? आपकी मम्मा ने अगर चाय बनाई है या दूध बनाया है और उस दूध को एकदम गर्म करने के बाद उसके ऊपर एक लिड से उस वेसल को कवर कर दो, थोड़ी देर बाद जब आप वो लिड, करेक्ट, जब आप वो लिड को निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा उस लिड के सरफेस के ऊपर? द इनर सरफेस ऑफ द लिड, यू कैन सी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। दैट मीन्स जो धुआं लिड को टच कर रहा था उस धुएं के अंदर वाटर था। दैट इज वाटर वेपर। उसे हम क्या कहते हैं? वाटर वेपर। जो एयर के अंदर वाटर कंटेंट होता है इसको वाटर वेपर या मॉइस्चर कहते हैं। क्लियर? ओके, सो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ ऑक्सीजन and breathe out carbon dioxide. Human beings and animals, इस एयर को हम ब्रीथ करते हैं, इनहेल करना। जब हम इनहेल करते हैं तब एयर में से बहुत सारे टाइप के गैसेस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, बट हमारी बॉडी जो है वो इनमें से सिर्फ ऑक्सीजन नाम का जो गैस है उसे यूटिलाइज करती है और बाकी के गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिलीज कर देती है, फिर से बाहर रिलीज करना। आपने ऑब्जर्व किया है ना? सी ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सो व्हेन यू ब्रीथ इन ऑल द गैसेस एंटर इन योर बॉडी बट ओनली ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड और यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी। द रेस्ट ऑफ द गैसेस दे आर रिलीज्ड बैक। बाकी के गैसेस वो जब आप एक्सेल करते हो तब बाहर निकल जाते हैं। ओके, सो वी यूज ऑक्सीजन एंड वी रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, बट प्लांट्स का ऑपोजिट है। प्लांट्स व्हाट डू दे डू? प्लांट्स दे यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। सो नाउ एयर ऑल्सो हैज सम अमाउंट ऑफ डस्ट एंड स्मोक, क्योंकि हम आज के जमाने में क्या है, बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे होते हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, करेक्ट, वेस्ट को जलाते हैं, तो इस वजह से एयर के अंदर डस्ट, करेक्ट, एंड स्मोक भी होती है। डस्ट कैसे होती है? आपने कभी ऑब्जर्व किया है? कभी कभी जोर से विंड ब्लो होती है तो आपकी आंख में डस्ट चली जाती है, तो एयर के साथ डस्ट भी होती है कभी कभी, एंड स्मोक यानी कि धुआं भी मिक्स हो जाता है। व्हीकल्स में अगर आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो तो आगे की व्हीकल के जो स्मोक होती है वो आपके व्हीकल के पास आती है, तो यू फील कंजेस्टेड, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे कितना धुआं है, कितना धुआं है। सो डस्ट एंड स्मोक भी एयर में रिलीज किया जाता है। प्लेसेस विद मोर फैक्ट्रीज विल हैव मोर स्मोक, और जिस जगह पर बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है ना, वहां की एयर में स्मोक भी ज्यादा रहती है, धुआं बहुत ज्यादा,
क्योंकि हर फैक्ट्री में से स्मोक रिलीज की जाती है, धुएं को रिलीज किया जाता है। क्लियर? सो दिस इज एयर। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज एयर? एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस and gaseous substances around us. So next session we will start with why do we need air? इस air की need क्या है? In today's session we will keep only till here. Okay? So I hope you have understood today's session clearly. Please read the chapter till where I have explained through this video. And do the homework which is being sent to you through PDF. Read the instructions properly and then do your work. Okay? If you have liked this video, please click on the like